Good evening, guys. Good evening. All right. All right. So the topic of today is how to be confident speaker. How to be confident speaker. Yes, Shivam, we are the best. I just got one very good message. Just 1 second, guys. Okay, guys. Let's start with today's topic. How to be confident speaker. Okay. And I'll tell you this topic in a general term and in specific term also related to interview. Okay. There are three parameters. How to be confident speaker in public speaking, while journal speaking, and while interview. While interview also. Okay. Now, understand why this is very important to be a confident speaker when you are talking in your interview. When you're speaking, certain things are very important. Topic name, I'm repeating it again. Okay, so the topic name is how to be confident speaker. Before that, I just wanted to know about three things also. First thing, how many minutes done, how many minutes reading newspaper done? Good. 1 hour, 1.5 hour, 1 hour, 70 minutes, 1 hour, 45 minutes, 1 hour, 35 minutes, 55, 45. Okay, not bad. Okay, it means everybody is going good except 2-3 people. All right, no issues. Rest of the things, guys, make sure everybody is doing it. Okay, without any fail, I need proper time for reading newspaper loudly. Second, how many words are done till now? How many words till now? 37, 48, 60, 49, 50 words. Good. 55, 63, 74. Okay, good. We are going good here also. Then next, how we are speaking? Customer support, friend, relative, family, mirror. Is everything going fine in this? Okay. Guys, make sure you'll not be able to speak. I'm telling you again and again. Why I am asking this on a daily basis? Because you will not be able to speak in interview. You'll not be able to speak if you'll not follow all these things. This is very important. Okay? Good. Now, let's come to the topic, today's topic. How to be confident speaker, confident while interview, confident while giving any public speaking lectures or any journal speaking. How to create the confidence and what all things we need to do while we are sitting in the interview. First point, very first point, make eye contact. Make eye contact. When you are sitting in the interview, if you are in your company also, you are giving any presentation in any public speaking platform also, for speaking, you have to have this eye contact. Eye contact is very important. Okay, eye contact. And इसके साथ ही लिख लेना not too much. ऐसे नहीं आप देखते ही जा रहे हो बस, उनको लगेगा ये पता नहीं इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों हो गए हैं. Okay, eye contact, but not that too much. Whenever you're speaking something, you can have, okay, so at that point of time, I have created this. When you have to have eye contact, Goldie said, we forget words. Don't worry, it happened.
It is not happening with you, it's happening with everyone. So don't worry about it. Okay? Eye contact, we need to have eye contact, otherwise will not be hired. I'm telling you. इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान में रखता है, बहुत ज्यादा. मैं तो बिल्कुल भी हायर नहीं करता हूं इफ दैट पर्सन इज नॉट हैविंग आई कॉन्टैक्ट विद मी. आई कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू मच आई कॉन्टैक्ट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. टू मच आई कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट आपको बना के रखना है एंड चीजें यूज करनी है जो मैं बता रहा हूं. पहला आई कॉन्टैक्ट. सेकेंड, डोंट फिक्सेट ऑन मिस्टेक्स. डोंट फिक्सेट ऑन मिस्टेक्स. इसका मतलब बताते हैं, लिख लो पहले. डोंट फिक्सेट ऑन मिस्टेक्स. डू नॉट फिक्सेट ऑन मिस्टेक्स. आप ना कोई मिस्टेक, मान लो आपने लाइन इंग्लिश की गलत बोल दी. यस, फिक्सेट वर्ड कम्स फ्रॉम फिक्स्ड. आपने कोई लाइन गलत बोल दी, आप क्या करते हो, दोबारा उस लाइन को करेक्ट करने के लिए बोलने लगते हो. कोई बात नहीं, अगर फ्लो में कुछ गलत बोल दिया, लेट इट बी, छोड़ दो उसको वहीं पे. कई बार हमारा इतना ध्यान ही नहीं जाता, बट आप हमारा ध्यान लेके जाते हो. ये हैक बता रहा हूं एक. हमारा पूरा ध्यान इंटरव्यू में नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यूअर का दिमाग बहुत सारी चीजों में होता है. अगर एक आधी लाइन हमने आपकी स्किप भी कर दी ना, नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड कि मैंने गलती की थी, और वो हमें पता चल जाता आपने वो बहुत सिली मिस्टेक करी थी. तो क्यों इतना उस पे वापस नहीं जाना. कोई लाइन में गलती हुई, कोई डेटा में गलती हुई, कुछ भी है, कुछ भी शो मत करो, नथिंग, लेट इट बी. कैजुअली जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश की लाइन गलत बोल दी, ग्रामर गलत बोल दी, कोई चीज आपको ऐसी लग रही है कि आपको पता है गलत है, इंटरव्यूअर को नहीं पता है, लेट इट बी, देन गो अहेड. इंटरव्यूअर रोक दे कि नहीं आपने चीज गलत बोली. ओके सर, आई एम रियली सॉरी. कोई बात नहीं, सॉरी बोलो, गो अहेड. ठीक है ना. गलती कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलती को जाके जब दोबारा बताते हो ना, तब इंटरव्यू को और पता चलता है कि यार गलती भी करी, ऊपर से वो दोबारा और गलती कर रहे हो बता के. इट मीन्स आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो. डोंट डू इट. ओके. If interviewer caught you, then only you have to then you have to apologize, otherwise not. Let it be, go ahead. This is the second point that you need to understand or you need to take care of while interview. पब्लिक स्पीकिंग में भी चल रहा है, चाहे कहीं पे भी चल रहा है, स्पीकिंग में ये चीज बहुत जरूरी है. ओके. नाउ राइट डाउन थर्ड पॉइंट, प्रेपरेशन. थर्ड पॉइंट, प्रेपरेशन. 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 इंटरव्यू में प्रिपेयर होके जाना बहुत जरूरी है. किस चीज के लिए प्रिपेयर होना है वो मैं बता दूंगा. कैसे प्रिपेयर होना है वो जानो पहले. प्रिपेयर किस चीज के लिए होना है वो इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा. प्रिपेयर कैसे होना है वो समझ लो. प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर रिहर्सल. आपकी इंट्रोडक्शन की रिहर्सल कभी बोल के नहीं देखी आपने, सीधा वहां बोल रहे हो, तो एक पहली बार बोलोगे, फंबल करोगे ही करोगे. सो डोंट डू इट. प्रैक्टिस कर लो पहले. कुछ ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस अपने आप से पूछ के देख लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, जो मैं आगे बताऊंगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपको पता है, सबको पता है, ये फॉलो हम बहुत पहले से कर रहे हैं. कंसर्न इज हम उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं. हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है उस चीज को. इफ यू विल नॉट डू प्रैक्टिस, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. you'll be doing a lot of mistakes when you'll be preparing it. वो सारी चीजें प्रैक्टिस में निकल जाएंगी, बट कई बार वो हम प्रैक्टिस करते नहीं, वो इंटरव्यू में चीजें निकलती हैं. हमें कोई वर्ड है, कोई अलग सा वर्ड है. बहुत बार मेरे इंटरव्यू में जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या कुछ होता है ना, बच्चों के वर्ड्स फंस जाते हैं. वो मुझे पता चलता है प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, वो सीरियस ही नहीं ले रहे इस जॉब को. आप बिना पढ़े एग्जाम दोगे, टीचर को पता ही चल जाएगा पढ़ के नहीं आए, नंबर नहीं मिलेंगे. वैसे एग्जामिनर को, इंटरव्यूअर को भी पता चल जाता है कि यू केम हेयर विदाउट एनी प्रैक्टिस. इट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट. तब हम अपना डिसीजन बोलते हैं रिजेक्टेड.
So what you need to do is do proper practice. बिना प्रैक्टिस के you are not allowed to sit in the interview, otherwise your chances of rejection will be high. मैं नहीं बोलूंगा रिजेक्ट ही होगे पक्का, बट चांसेस रिजेक्शन के ज्यादा हो जाएंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस. किस चीज की प्रैक्टिस? योर इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस बोल के देखना. ऐसे नहीं अच्छा ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोल दूंगी, ओके देन नो 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 नो, डोंट डू इट. ठीक है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी. आपको बोल के देखना है, जैसे न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हो ऐसे लाउडली बोल के देखना है. तभी हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे इस चीज को कंटिन्यू करना है. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट लिखो. फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज fourth point is small talk with interviewer. Small talk with interviewer. Small talk with interviewer. ठीक है. स्मॉल टॉक का मतलब हर बार इंटरव्यूअर आपको बोलेगा ही, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम पे आपको इंटरव्यूअर ये चीज बोलेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. दिस इज कॉल्ड स्मॉल टॉक. आपको इसमें क्या करना है? अपनी फंबलनेस को दूर करना है. सिर्फ इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन वाला फेस ही होता है जो आपको मैक्सिमम टाइम पे पता होगा, बाकी फेस नहीं पता होता. सारी नर्वसनेस, सारी फंबलनेस, सारी यहीं पे उतार देना. यहीं यहीं दिस इज द लेवल जहां पे सारी चीजें आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा वो. अपनी इंट्रोडक्शन को इस तरीके से प्रिपेयर करना सो दैट धीरे धीरे बोल रहे हो. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी आपको बताई थी, धीरे धीरे अपनी इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद पॉज लो प्रॉपर, सो दैट आप फेमिलियर हो जाओ इंटरव्यूअर के साथ. उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप डरोगे नहीं. आप इतनी जल्दी जल्दी अपनी इंट्रोडक्शन दे देते हो, हमें भी लगता है यार ये क्रैम करके आए हुए हैं, सीखा सिखाया आके बोल दिए, या देख के बोल रहे हैं कहीं से. कई बार ऐसा भी हुआ है. सो डोंट डू दिस. अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हाय सर, माय नेम इज रोहित कपूर, I belong to very small town Khanna, which is very, very famous for its grain market. Asia's largest grain market is in Khanna. If you talk about my educational qualification, I've done my graduation, then post-graduation, I've cracked my UGC NET exam in the very first attempt. I have 3 research papers. They are published in International Journal of Financial and Management. If you talk about my experience, in total, I have more than 4.5 years of an experience, wherein I used to work for this company, I used to work for this company, I used to work for this company. I have a lot of achievements as well. If you talk about my first company, I was a Pan-India rank 1 holder as a business development manager. And if you talk about my second company, I was Pan-India rank 1 holder as a senior manager. I used to handle 120 people and I used to handle them in a different way with a different strategy. मतलब बोलना है तरीके से. फॉर फ्रेशर अपने बारे में बताओ, अपनी हॉबीज के बारे में बताओ, उनको थोड़ा फेमिलियर करने की कोशिश करो. ऑल राइट सर, सो इन माय फ्री टाइम आई यूज्ड टू रीड दिस, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट अबाउट सेल्स बिकॉज आई एम वेरी ईगर टू जॉइन सेल्स. If I tell you, I am very eager to join all these things because I am I have a keen interest in sales, in marketing, in operations, in HR, in IT. जो भी कुछ आप बोलना चाहते हो, इंटरेस्ट के बारे में बताओ. That I have these skills, but I am looking for these interest also because I am planning for. Keen means बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है मेरा. गोल्स के बारे में बताओ, अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बताओ. ठीक है. मेक श्योर यही आपकी फंबलनेस दूर करेगा सबसे पहली. इसके बाद फंबल हो जाओगे, इसलिए पहले से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होनी चाहिए. एंड विदाउट एनी क्रैमिंग, रट्टा मार के इंट्रोडक्शन नहीं देनी, क्रैम नहीं होना चाहिए. फ्रेशर के लिए आप गोल्स बताओ, इंटरेस्ट बताओ, स्किल्स बताओ, फ्री टाइम में क्या करते हो वो बताओ. दैट यू आर रीडिंग बुक्स, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, you are doing a lot of stuff related to that particular profile, you are searching a lot about the profile, you are searching a lot about the company. बिल्कुल गोल्स बता सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में, दैट व्हाट यू आर प्लानिंग, व्हाट इज शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म गोल. You can mention anything in your introduction, but it shouldn't be more than 2 to 3 minutes, वरना बोर हो जाता है इंटरव्यूअर. 2 से 3 मिनट से ऊपर मत रखो इसको. It should be crisp, clear and short. Done. Now
लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट. इसको ना बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, जो मैं अभी बताने वाला हूं. अंडरलाइन कर लेना बहुत ही ज्यादा अच्छे से. अप्लाई द रेपो मेथड. अप्लाई द रेपो मेथड. आपको अब इंटरव्यूअर के साथ रेपो बनानी है. यू हैव टू क्रिएट द रेपो विद द इंटरव्यूअर. वो कैसे बनेगी, उसके 3-4 ऑप्शन अभी बता देता हूं, उसके बाद आप देखना कैसे बनानी है. सबसे पहला, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, उस बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल पहले ही चेक करो. रेपो मींस कनेक्शन बनाना है इंटरव्यूअर के साथ. इंटरव्यूअर आपको जानता नहीं, आप इंटरव्यूअर को जानते नहीं. एक कनेक्शन बनाओ, क्योंकि इंडियंस में कनेक्शन पे भी रिजेक्शंस नहीं आती. अगर खन्ना, मैं खन्ना से हूँ, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ. लुधियाना का कोई बंदा आएगा, आई फील कनेक्टेड. पंजाब का कोई बंदा आएगा, आई फील कनेक्टेड. या एट द एंड यू फील मी कनेक्टेड, तब मैं कनेक्ट फील करूंगा. ठीक है. अब बात करते हैं रेपो बनानी कैसे है. पहला, जिस बंदे के साथ आपका इंटरव्यू है उसकी मेल आ जाती होती है आपको, उस बंदे का नाम भी आ जाता होता है. उसको लिंक्डइन पे चेक करो, ये बंदे का नाम क्या है, कौन सी प्रोफाइल पे, कंपनी पे, कहां से बिलोंग करता है. ये सारा आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास एचआर का जो इंटरव्यू ले रहा है उसका डेटा है तो. अगर नहीं है, आपको नहीं पता कौन आपका इंटरव्यू लेने वाला है, then what you have to do is, just when you are having conversation with the interviewer, ask question also. All right sir, okay, so it's totally about me, that's about me. So sir, I at the end, जैसे हम पूछते हैं ना कंपनी के बारे में, so sir I just wanted to know from your end also, what would be the exact role, what all things would be there in the role. ऐसा करके कुछ पूछ लो, सो दैट वो कनेक्टेड फील करे, वो आपको समझाएगा. फिर अगर वो अच्छा एक एचआर होगा, समझने वाला, वो आपको सारी चीजें समझाएगा. वो कोई भी मार्केटिंग वाला हो, सेल्स, ऑपरेशंस, कोई भी हो, वो आपको समझाएगा. उसको लगेगा कि आप टाइम दे रहे हो इस चीज को, मतलब यू रियली वांटेड टू वर्क फॉर दिस कंपनी एंड फॉर दिस फील्ड, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग योर टाइम. तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया करो. ठीक है. रेपो बिल्ड करने की कोशिश करो. रेपो का एक और बहुत अच्छा है, आर्ग्यूमेंटेटिव बिल्कुल नहीं होना. आर्ग्यूमेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं होना. अगर आर्ग्यूमेंट हुआ, समझ लेना कि वो जॉब गई. आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना. जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेने आ रहा है, उसको अपने टाइम पे बहुत काम होता है. वो टाइम निकाल के इंटरव्यू लेता है. उसका काम सिर्फ इंटरव्यू लेना नहीं है, उसका काम है अपनी टीम को हैंडल करना. यस पूजा, आई कैन सी योर मैसेजेस. ठीक है. सो आपको रेपो बनानी है इंटरव्यूअर के साथ, कनेक्शन बिल्डअप करना है. जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको उस तरीके आंसर करो पॉजिटिवली. ठीक है, ताकि रेपो बन जाए आपकी उनके साथ एक. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. डोंट इंटरप्ट. डोंट इंटरप्ट. डोंट टॉक टू मच. Lakshmi, no, it's not like that. If interviewer is good, they will be answering your questions for sure. They'll be making you understand. जितना आप जॉब के लिए हंगरनेस रखते हो ना, उससे ज्यादा एक इंटरव्यूअर रखता है. इंटरव्यूअर एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश में होता है हमेशा. वो हमें मिलता नहीं है. जब मिल जाता है तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं हम. हम भी अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं, बट आप दिखा नहीं पा रहे हो कि आप अच्छे कैंडिडेट हो. अगर आप हो तो शो करो, ताकि हम आपको सिलेक्ट कर लें. गुड पूजा, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर टेक्स्ट बुक, कंग्रेचुलेशंस. डोंट इंटरप्ट. डोंट टॉक टू मच. बहुत ज्यादा नहीं बोलना है. इंटरप्ट तो बिल्कुल नहीं करना है. मैंने एक चीज बताई थी, इंस्टेंट आंसर नहीं करना. कौन सा आंसर करना है, चैट बॉक्स में बताना जल्दी. इंस्टेंट आंसर नहीं करना, कौन सा आंसर करना है, चैट बॉक्स में फटाफट. करेक्ट आंसर करना है, बिल्कुल. इंस्टेंट नहीं, करेक्ट आंसर करना है. डोंट इंटरप्ट योर इंटरव्यूअर. वो कुछ बोल रहे हैं, ओके ओके, ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है. अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क यू, देन आंसर इट. Good Pavan, congratulations. Okay, I got lot of people are getting placements. Congratulations guys. Okay guys, so correct answer देना आपको. Correct answer. Go ahead Ayush. Correct answer देना है, make sure.
ओके, इंस्टेंट नहीं, इंटरप्ट नहीं करना। अब आप बोलोगे सर कई बार हमें क्या होता है पता ही नहीं होता आंसर, तो करना क्या है ये तो बता दो। इसका मंत्र देने वाला हूं, समझ लेना आज। अगर आपको आंसर नहीं आता, कुछ चीज नहीं आती, आपको लग रहा है थोड़ा सा सोचूंगा या सोचूंगी फिर ही आंसर कर पाऊंगी, ठीक है, तब हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। ऐसे आप बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचने की एक्टिंग आप इंटरव्यू में कर सकते हो, सो दैट उनको भी लगे कि आपको सारी चीजें नहीं आती, यू आर टेकिंग टाइम, यू नो। सो दिस इज व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर इट। धीरे बोलना शुरू करो, धीरे। um यू नो, ये वर्ड्स हैं, एम, यू कैन यूज दीज, ताकि आप टाइम लो, ताकि आप टाइम लो, ठीक है, टाइम ले लो, कोई बात नहीं, टाइम लेके बोल दो। करेक्ट आंसर देना है, इंस्टेंट नहीं, ठीक है। डोंट इंटरप्ट, डोंट टू टॉक टू मच, नहीं रिजेक्शन नहीं बढ़ेगा इससे। हमें कौन सा इंटरव्यूअर को सारे आंसर थोड़ी आते होंगे, हमें भी ऐसा, हमें थोड़ी लगता है कि सारे आंसर आपको पता ही होंगे। एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ आवर्स, वी जस्ट वांट कि आप कुछ सोच के भी आंसर करो ना, इट शुड बी गुड वन। गो एट आयुष, यू कैन डू इट पार्ट टाइम लाइक, ओके। सो ध्यान से बोलना है, जो भी बोलना है, वर्ड स्पेसिफिक, भागना नहीं है, भागना नहीं है, एक्साइटमेंट बहुत नहीं दिखानी, स्टीफन, बिल्कुल भी नहीं दिखानी, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं दिखानी, भागना बिल्कुल नहीं है, बी काम, पोलाइटली कामली आंसर करने हैं, इट विल गिव यू बिग बिग पॉजिटिव पॉइंट। काम रहना है, बिल्कुल काम, बिल्कुल होते हैं। टॉक स्लोली, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल काम होके आराम से बात करनी है। नाउ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूज योर बॉडी लैंग्वेज परफेक्टली, यूज योर बॉडी लैंग्वेज परफेक्टली। थोड़ी देर में आ जाएगा, यूज योर बॉडी लैंग्वेज पोलाइटली, यूज योर बॉडी लैंग्वेज पोलाइटली। अब ना, कई बार आप बोलते नहीं हो, बट बॉडी लैंग्वेज बोल देती है। मैं ऐसे बैठा हूं, मैं एकदम से ऐसे हो गया, ऐसे होके मैं मान लो कि आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं कि वो मेरे को दूर दूर तक नहीं पता, और मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया हूं, मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया हूं, तो आपको बहुत ही पोलाइटली अपनी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पोलाइट रखनी है। शोल्डर्स ऐसे मुंह फालतू में नहीं करने हैं, बाकी चीजें आपके हेड फालतू में स्लाउचिंग, मतलब बहुत सारी चीजें होती है बॉडी लैंग्वेज में। स्टिफ नहीं होना है, ऐसे ही बैठे हो बिल्कुल ऐसे, नो, स्टिफ नहीं होना, नर्वसनेस दिखा रहा है, पहले ही बताया था। ऐसे हिल रहे हो, बिल्कुल नहीं करना, ये प्रैक्टिस में निकल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसे होना नहीं चाहिए, स्टिफनेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, स्टिफनेस मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए हो, ओके सर, यस यस सर, बहुत सारे इंटरव्यूज में स्टिफनेस दिखी है मेरे को, मेरे बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे भी इंटरव्यूज हुए हैं बहुत ही कैजुअल, ऐसे बैठे हैं, व्हाट इज दिस, ऐसे नहीं बिल्कुल भी करना। यू हैव टू बी प्रोफेशनल इफ यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, ठीक है। योर बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चलता है। टी शर्ट डाल के कोई भी नहीं करेगा इंटरव्यू, टी शर्ट डाल के नहीं करेगा, बिल्कुल भी टी शर्ट डाल के इंटरव्यू नहीं देना, शर्ट होनी चाहिए, लड़कियों ने कुर्ती या कोई भी फॉर्मल्स पहन के, टी शर्ट नहीं डालनी बिल्कुल भी, ठीक है, डन। अब एक और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, हाँ, गर्ल्स कैन ऑल्सो वियर शर्ट, नैन्सी। तो कई बार क्या होता है, हमें जब मान लो मैं बैठा हूं, लैपटॉप का ना वही नहीं सही है, लैपटॉप सही नहीं रखा हुआ मैंने, और जो फोन से ज्वाइन करते हैं ना, प्लीज प्लीज डोंट एवर डू इट। जब भी आपका इंटरव्यू, यू हैव टू ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप। मोबाइल वाले 98% आज तक मैंने रिजेक्ट किए हैं, नहीं तो बहुत एक्सेप्शनल बंदा आ गया तो मैंने एक्सेप्ट किया है। मोबाइल से कुछ भी है, रीस्केड्यूल करवा लो इंटरव्यू, नहीं तो गलत इंपैक्ट जाएगा ही जाएगा। मोबाइल से ज्वाइन करना ही मत, लैपटॉप से ही ज्वाइन करना, तभी एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ेंगे, नहीं तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत हो जाएंगे। क्लियर है? कुर्ती का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है हिमानी, यू कैन वेयर एनीथिंग, ठीक है। लैपटॉप नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते गाइस, आई एम रियली सॉरी,
but without laptop you'll not be able to crack it. Laptop is mandatory thing for everyone. मोबाइल से क्या है, दिस इज अनप्रोफेशनल. आपको काम तो लैपटॉप से करना है, आपको काम तो लैपटॉप से करना है. व्हाई यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम मोबाइल देन? जो मोबाइल से ज्वाइन करता है हमें ये लगता है उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो क्यों करेंगे हम उसको ऑफर ही क्यों करेंगे जॉब? विदाउट लैपटॉप तो जॉब ही नहीं है कोई मार्केट में. ठीक है, रीस्केड्यूल करने के लिए अपने एचआर को बता दो शिवम कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मेरे पास लैपटॉप नहीं है. आई विल बी अवेलेबल टुमारो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, दिस इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज. नाउ लास्ट वन, सेल्स के लिए नहीं, हर प्रोफाइल के लिए लैपटॉप चाहिए. लास्ट पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड. नाउ द मेजर कंसर्न इज आपको सेल्स नहीं आती, मान लिया. You don't know about marketing, got it. You don't know about operations, got it. You don't know anything. It means you are good at communication but nothing else. सारा कुछ सिखा दिया जाएगा रिक्रूटर की तरफ से. एचआर और जो कंपनी के बंदे हैं ना, आपको सब सिखा देंगे. एक चीज नहीं सिखाएंगे वो आपको, आपका बिहेवियर नहीं सुधारेंगे वो. अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, स्किल में कमी है ना, रिक्रूटर फिर भी हायर कर लेगा. आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, वो हायर नहीं करेगा. Your behavior, your attitude, your personality, these things are very, very important when you are sitting in the interview. If you are ignoring, if you are showing ego, if you are not listening to the interviewer properly, then there is no point. You'll not be able to get that particular job. क्योंकि उनको egoistic बंदे चाहिए ही नहीं. उनको चाहिए कौन बंदे? Those who are polite, वो कंपनी में आके पॉजिटिव वाइब के साथ आए. कई बार इंटरव्यूअर को भी लगता है बहुत सारी चीजें होती हैं, पोलाइट हम्बल होना है आपको. अब मान लो मैंने कोई चीज पूछी, विल यू बी एबल टू अचीव द टारगेट? यस सर, व्हाई नॉट, आई विल डू इट. व्हाट इज दिस? You have to say, obviously sir, I'll be working so hard that I'll be achieving my target, and I am assuring you that my targets will be met before time. दूसरा बंदा बोल रहा है, yes sir, why not, I'll be doing it. यहां अग्रेसिवनेस दिखा रहे हो आप कि तुमने मुझसे सवाल पूछ कैसे लिया. तुम्हें मेरे फेस को देख के पता लग जाना चाहिए कि मैं टारगेट अचीव कर लूंगा, बट हम नहीं कर सकते ना. कोई भी इंटरव्यूअर आपके फेस को देख के थोड़ी पहचान लेगा आप टारगेट अचीव कर पाओगे या नहीं. इट्स ओनली योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स ओनली योर वर्ड्स दैट हिटिंग अस सो हार्ड दैट वी नो दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट. ठीक है, अब आगे जाके मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जब इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे. जब वो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो अलग ही आंसर देते हैं. या तो तरीका सही नहीं है या क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है. हमें दोनों पे काम करना है. स्पीकिंग में मतलब तरीका क्या है बात करने का. इट शुड बी पोलाइट, हम्बल. प्लीज यूज वर्ड प्लीज अगेन एंड अगेन. थैंक यू, प्लीज, अपोलोजाइज, सॉरी. ये वर्ड्स इंटरव्यू में आपके बार बार यूज होते रहने चाहिए ताकि उसको लगे कि यार ये बंदे में एटिकेट्स हैं. वो अगर आएगा कंपनी में तो करेगा. और ट्राई वर्ड यूज नहीं करना होता है. ट्राई वर्ड नहीं यूज करना होता कभी भी. ट्राई का मतलब पता है कि मैं कोशिश करूंगा. यार कोशिश ही करवानी है आपको तो हायर क्यों करेंगे? कोशिश करवानी है तो मैं किसी भी ऐसे बंदे को हायर कर लूं ना जो पढ़ा लिखा ही नहीं है. वो भी कोशिश करेगा, आप भी कोशिश करोगे. आई विल गिव माई बेस्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर. ट्राई वर्ड यूज नहीं करना. सेल्स वाले तो कर मत लेना, बिल्कुल भी नहीं. सेल्स वाले ट्राई वर्ड यूज मत करना. ट्राई मीन्स मैं कोशिश करूंगा. कोशिश करने के लिए आपको क्या बुला रहे हैं? कंपनी टाइम खराब क्यों कर रही है? आप तो कोशिश करने आ रहे हो. यहाँ कोर्स नहीं लगते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नो, दिस इज द पॉइंट वेयर यू नीड टू मेंशन. ट्राई वर्ड मेंशन ही नहीं करना. ट्राई वर्ड का मतलब मैं कोशिश करूंगा. कोशिश क्यों करनी है? आप कंपनी में हम आपको इतना खर्चा करके लेके आएंगे, आप ट्राई करने आ रहे हो. यू हैव टू गिव योर बेस्ट and you have to get it done. Rest of the things when you'll join the company you'll understand. नहीं टारगेट हो कोई बात नहीं, सीख लोगे. ट्राई वर्ड को रिफ्रेज नहीं करना है. जस्ट से आई गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव 100% ऑफ माइन टू गेट माई रिजल्ट्स ऑन ट्रैक. ठीक है,
These all are the points you have to understand very carefully. एक एक करके दोबारा रिपीट करते हैं पॉइंट्स. हाउ टू बी कॉन्फिडेंट स्पीकर, ये चीजें आपके इंटरव्यू में भी काम आने वाली हैं, जर्नल पब्लिक स्पीकिंग में, और कंपनी में अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब भी काम आने वाली है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बता दो फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में, वेट कर रहा हूं. आई कॉन्टैक्ट. आई होप सबको समझ आ गया होगा. आई कॉन्टैक्ट, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है. ज्यादा बनाओगे इगोइस्टिक शो करता है, एटीट्यूड शो करता है. हमें सिर्फ और सिर्फ आई कॉन्टैक्ट बनाना है. ठीक है, जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, आपकी चैट बॉक्स देखता हूँ, आई कॉन्टैक्ट बनाता हूँ, तो ऐसे आई कॉन्टैक्ट आपको इंटरव्यूअर के साथ भी बना के रखना है. फिजिकल है तो अच्छा, आपको प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा. नीचे देख के कभी भी इंटरव्यू नहीं देखो, इधर उधर देख के, इधर कहीं भी देख के, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए. डन. सेकेंड पॉइंट, डोंट फिक्स इट ऑन मिस्टेक्स. मिस्टेक्स पे नहीं अड़ना है. कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेट इट बी, कोई बात नहीं. इंटरव्यू ने नहीं पकड़ी, लेट इट बी. दोबारा जाके गलती को करेक्ट करके लाइन बोलने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस. डोंट डू दिस. ये बिल्कुल भी मत करना. मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिस्टेक दोबारा जाके करेक्ट नहीं करनी है जब तक इंटरव्यूअर पकड़ नहीं रहा. पकड़ लिया, आई एम रियली रियली सॉरी सर, आई वाज जस्ट माय टंग वाज स्लिप्ड. कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सर गलती का, इट वाज, आई वाज इन हरी, दैट्स व्हाई आई डिड. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड पॉइंट, प्रेपरेशन. थर्ड पॉइंट, प्रेपरेशन. प्रेपरेशन अच्छे से प्रिपेयर करना है अपनी इंट्रोडक्शन को. इसी से नर्वसनेस, फंबलनेस, जो भी आपका दिक्कत होती है ना, कॉन्फिडेंस, ये सब इसी से आना है. यही क्वेश्चन है जो आपको पता है. एक्चुअली में यही पता है आपको. प्रिपेयर करो अच्छे से. स्मॉल टॉक यही होगी. आप अच्छे से अपनी इंट्रोडक्शन को बना लो, अच्छे से अपनी इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कर लो. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट. ओके, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो, नहीं तो क्या होगा, आप आंसर ही नहीं कर पाओगे उस चीज को. ठीक है ना, आगे जाके आप बहुत फंबल हो जाओगे. नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई द रैपो. रेपो मेथड को यूज करना है. रेपो मेथड मतलब कनेक्शन बनाना है. कनेक्शन कैसे बनेगा, हम्बलनेस से बनेगा. यू हैव टू क्रिएट कनेक्शन विद द इंटरव्यूअर. एट द एंड क्वेश्चन पूछ लो 2-3. लीव पॉलिसी पूछ लो, जनरल होती है. एचआर के बारे में पूछ लो, पॉलिसी पूछ लो, कोई भी. यू कैन आस्क टू हैव अ कनेक्शन, ताकि थोड़ा बॉन्ड बन जाए उनके साथ. ठीक है, रेपो बनाओ सो दैट उसको लगे कि यार ये कंपनी में आया है, कुछ ना कुछ सीखने आया है. नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट इंटरप्ट. डोंट इंटरप्ट, डोंट टॉक टू मच. बीच में तो रोकना ही नहीं है. डोंट इंटरप्ट, डोंट टॉक टू मच. ऐसा नहीं आप बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, इंटरव्यूअर रोक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. टू दी पॉइंट, क्रिस्प आंसर दो. इंटरप्ट, बीच में इंटरव्यूअर को नहीं रोकना. कोई क्वेश्चन भी है, लेट हिम और हर कंप्लीट फर्स्ट, देन ओनली यू कैन आस्क इट. ओके, देन इसमें इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करना. देन बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए. पोलाइट, अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, आईब्रोज बहुत घुमा रहे हो, ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे इशारे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं करने. पोलाइट, फंबलनेस. लास्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कर लेना. पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे. अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना, स्माइली फेस. उसको बताओ, अगर वो बोल भी रहा है ना, a lot of people in my team are still struggling for targets, they are not able to achieve it, something like this. All right sir, no issues, I will give my best and I know I'll get my numbers on track. You just give me one opportunity, I will do my best and I'll get the things done on track. बहुत polite, बहुत polite, ताकि उसको लगे बंदा बहुत ही polite है और ये आ गया कंपनी में तो काम करके ही जाएगा. स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में बता सकते हो, कॉलेज प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेंथ वीकनेस यू कैन टॉक इन योर इंट्रोडक्शन. ओके, ये शिवम टेल मी. नो 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 नीड तपस्वी, बिल्कुल मेंशन मत करो. ना, कंपनी इतनी जल्दी टर्मिनेट नहीं करती है गाइस. अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता, कंपनी विल गिव यू टाइम. आपको टाइम दिया जाता है, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू. तो आपको टाइम दिया जाता है.
आप जितना टाइम ज्यादा लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उस जोन में हमें जाना नहीं है। सबके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। और वीकनेस में अगर कोई बोल भी रहा है ना, वीकनेस में सारे एक ही चीज बोला करो, आई एम बिट इमोशनल। ये वीकनेस बस, सब यही यही वीकनेस को बोलना, आई एम बिट इमोशनल। हॉबी में कुकिंग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं गाइस। कुकिंग कुछ भी हॉबी में वो बोलना है जो उस फील्ड में उससे रिलेटेड है, रिलेटेड होना चाहिए वहां से। हॉबी, इंटरेस्ट, स्किल्स तब बनाओगे आप अपनी, ठीक है। फील्ड रिलेटेड, यस। सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, आईटी, बिजनेस एनालिस्ट, उसके बारे में बताओ। इंटर्नशिप बता सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दीज ऑल आर दी पॉइंट्स वी डिस्कस्ड, इनको अच्छे से समझ लेना। ये है बात कैसे करनी है, बात क्या करनी है उसके बारे में बताऊंगा। बात कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर बताऊंगा, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी आज होनी थी क्लास लिंक्डइन की, वो नहीं करवा पाया क्योंकि एक शेड्यूल चल रहा था। अभी मोस्ट प्रोबेबली शायद कल लिंक्डइन की क्लास शेड्यूल कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं एक बार आकाश से बात कर लेता हूँ, विल हैव योर क्लास शेड्यूल्ड, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी फोकस करो, रिज्यूमे जैसे बना रहे हो अच्छे से रिज्यूमे बना के रखो। सारी चीजें जो मैंने बताई है रिज्यूमे में होनी चाहिए। अपनी लिंक्डइन आईडी बना लो, ठीक है, यूट्यूब से चेक कर लो कैसे बनती है। और अपने फोकस करो मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कनेक्शंस बढ़ाओ, ओके। उसके बाद अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव एटीट्यूड पे बात करो, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। चलो मंत्र बता दो फटाफट एवरीवन। आई एम अवेलेबल ऑन चैट बॉक्स फॉर नेक्स्ट 3 minutes। Thank you everyone. I got lot of energy, guys, when you write it. I am the best because you all are the best. You just need a kick to start your career. For a freshers, you just need a kick to start your career, and I can bet on it that you are the best. I don't know आप कहाँ से हो, कौन सी सिटी से, कौन सी स्टेट से हो, बट आई नो यू आर दी बेस्ट एंड यू विल डू समथिंग वंडर्स इन योर लाइफ। जॉब तो सबको मिली जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में करोगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रखो, लर्निंग प्रॉपरली कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, चीजें करते रहो सब, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। विल हैव क्लास अगेन टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू गाइस।